Hello. Yeah. 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 Okay. So we can start with Anmol. All right. So, Assalamu alaikum, everyone. I'm Anmol Zahra. I'm an AI engineer at Atomic Computing, and for my background, I graduated with a degree in artificial intelligence itself. And for the last 2 years, I've been working at Atomic Computing, which is an AWS partner company. And I get to work on a lot of different, AI solutions, both at national and international level, because we have an international clientele. Apart from that, I also have a small startup which is called Agrotech Vision. And it started from the very own labs at my university because it was my final year project, which got successful enough to be converted into a venture, like we're talking here about. And it's incubated at National Incubation Center as well. And right now we're just making slow progress. So other than that, I'm just actively involved with the AI community in Pakistan, and I love to, find use cases where we can integrate AI. Thank you, Anmol. Mr. Bilal. My name is Bilal, and I'm a chartered accountant by education. I don't know how and when I entered in this space. I've been into Web3 for the last, let's say, 9 years now, and been building now. We have a few products that we have shipped out already, Alhamdulillah. And as of right now, we have a local startup, but we are basically focused on building Web3 on the global rails. I'm associated with a few foundations already, and I am here with the reference of Decode. That's a local initiative again from Pakistanis to Pakistanis, totally out of pocket, for the purpose of helping Pakistanis understand why this is the real opportunity that Pakistan has that can turn things around. Thank you. Thank you, Bilal. All right, so इरफान बेसिकली 20 साल से जो है मैं इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज़ें कर रहा हूँ और डिफरेंट चीज़ें करने का रीज़न ही यही था कि शुरू में टेलको से शुरू हुआ क्योंकि वहाँ से पैसे बनने थे शुरू में जॉब करनी होती है, पैसे कमाने होते हैं, सब ने कमाने होते हैं। बट उसके बाद जो है वो वेंचर वाला कीड़ा आ जाता है कि यार एंटरप्रेन्योर बनना है और कुछ करना है, अपने शौक़ का काम करना है। तो उसमें गेम्स बचपन से आर्ट भी करता था, ड्राइंग्स भी बेच रहा होता था छोटी क्लासों में। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, गेम्स बनाना शुरू की, फिर ऐप्स में आए। कोशिश यही की कि जो आगे आ रही है नई नई चीज़ उस पर काम करें। तो कोई 400 ऐप्स एंड गेम्स लॉन्च की हुई हैं पिछले 20 साल से, एंड एज यू सेड के फेलियर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट। सो उन 400 में से आई थिंक इफ़ आई कैन थिंक फ्रॉम द टॉप माई हेड कोई 22 ऐसी होंगी जो कि एक्चुअली दे वर्क एंड ब्रोक इवन एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट, एंड द रेस्ट ऑफ देम डिडंट वर्क। सो I mean, that's the beauty of this kind of entrepreneurship. Okay, you get to try a lot of things, you fail in a lot of them, but the ones that you succeed in, they make you rich and happy and purposeful that you actually accomplish something जो happen कर रही है। Currently जो है मैं जो next big thing वाली चीज़ों पे focus होते हुए काम हो रहा है वो एक blockchain है, विनार के नाम से उधर काम चल रहा होता है काफ़ी सारा blockchain का। एंड देन AI जो है लास्ट 5 years में बहुत सारी क्योंकि डेवलप हो गई, तो ऐप डेवलप करना एक बड़ा ईजी काम हो गया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप्स राइट नाउ दैट AI डेवलपमेंट कैन फिक्स, इंक्लूडिंग मार्केटिंग। लाइक आई मीन नॉर्मली जब हम AI सोच रहे होते हैं तो हम टेक्निकल सोच रहे होते हैं, बट आई थिंक राइट नाउ जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर सॉल्विंग इन आवर वर्क प्लेस इज़ मार्केटिंग रिलेटेड। सो वो जो ग्रंट वर्क होता था बहुत सारा, कंपेटिटर रिसर्च, फलाना ढमकाना, ये वो सारी चीज़ें। Like right now we have 40 odd products building in the last 3 months, and building them wasn't the hard part. I think marketing them is the hard part because you have to put some cash behind it as well, and that's why I think using AI and kind of learning how to use it, because we're all in a learning phase right now, is very important for everyone, not just like people that are like seasoned or whatever. But I think even interns that we have in our office, they sometimes perform so much better than like grown-ups because they're so easily adaptable towards this technology, right? So yeah, brief introduction, that's it. Amazing. So I have a question to all of you. What do you think from your unique lens is going to solve the problems of the talent, the mediocrity, and the low quality that we ship out from this country? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala to beshak is the solution to everything,
बट दुआ और दवा दोनों करनी पड़ती हैं. तो दुआ के साथ जो दवा विच वी रियली नीड टू फोकस ऑन. Should I go in English or should I go in Urdu? It's about the. I'm comfortable with any. Mix कर ले. ठीक है. जज्बात जिस ज़्यादा हो ज़बान जाएंगे, में जोर पिटाई से- होगी यहाँ पे नहीं फिर नहीं, अच्छा है, जज्बात वाली ही कॉन्वर्सेशन करनी है, अच्छा। रियल एंड रॉ. मसाइल बहुत सारे हैं. हम जो है ना कंज्यूमर्स हैं, वी आर नॉट बिल्डर्स बाय आवर ब्रेन. दिमागी तौर पे ना हम इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, हम बना के महसूस नहीं करते कि ओह आई बिल्ड दैट. पहला प्रॉब्लम तो ये है. आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस वुमन सिटिंग बिसाइड मी कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट AI कंप्यूटिंग. मैं यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, ये बच्चे मेरे पास आते हैं तो सबको ना सिर्फ एक इस वक्त भूत चढ़ा हुआ है, वो है LLM का, AI LLM का. आज से कुछ साल पहले CS का भूत चढ़ा हुआ था, पहले CA का भूत चढ़ा हुआ था. तो हमें भूत चढ़ते हैं तो पहले हमें भूत उतारने पड़ेंगे अपने. ठीक है ना. हमें देखना क्या है, वी डोंट नीड टू सी व्हाट इज़ नीडेड टुडे. अगर बच्चा आज यूनिवर्सिटी जा रहा है वो 4 साल बाद ग्रेजुएट होगा, करेक्ट. सो वी डोंट नीड टू सी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टुडे, वी नीड टू सी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट 4 to 6 years. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू बी फॉरवर्ड लुकिंग. हम फॉरवर्ड लुकिंग लोग नहीं हैं. दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. द मोमेंट वी रियलाइज ओके ये चीज़ें अब बातें होने लगी हैं. फॉर एग्जाम्पल Web3 राइट नाउ, मैं आपको बड़ी 1 मिनट में समझाऊँ. अभी Web3 की बातें होना स्टार्ट हुई हैं तकरीबन कोई 11-12 महीने पहले. PCC बना, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बना. उसके बाद फिर अगस्त के अंदर हमारे पास PCC बना, पीवारा बना. स्टेट अलाइंड है, मिनिस्टर्स अलाइंड हैं, बिलाल बिन साकिब लीड कर रहे हैं. मेरा सवाल ये है, इस वक्त तक Web3 में बच्चे क्यों नहीं हैं? वाई आर वी नॉट टॉकिंग Web3? Web3 की बात कब होगी? जब सारे बैंक्स बात करेंगे कि हमें चाहिए है, लोग चाहिए हैं, वो मार्केट में जाएंगे, लोग नहीं मिलेंगे, फिर इंपोर्ट होंगे, उसके बाद भूत चढ़ेगा, ओहो हो Web3. तो बाय दैट टाइम वी हैव द शिप हैज सेल्ड एंड सिंस वी बेसिकली मिस द अपॉर्चुनिटी वी बिकम स्कैमर्स. अल्लाह माफ़ करे. क्योंकि हमें होता है यार दुनिया ने कमा लिया, हमने नहीं कमाया. तो अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग बन जाएंगे, अगर हम 2 साल पहले इस पे काम कर रहे होते, यूनिवर्सिटी में करिकुलम आ गया होता, ब्लॉकचेन्स के बारे में बात हो रही होती, तो हम उस जगह खड़े होते जहाँ हम बोलते ये लो यार, ये ले लो. दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. मैंने 21 डेव्स हायर किए हैं इन द लास्ट 4 months, 4 महीनों में. उसमें से किसी एक को ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं थी. एक को. सर आपके पास भी वो होंगे ना जो आपने बनाए हैं, अब आप मुझसे ले लें भाई, एक्चुअली दे दें चाहिए. So the problem is we're not forward looking. I'll just pass it on. Yeah, for me, I think the fear of failure. Fear of failure is one thing which does not allow people to even try. And this is one thing which holds back a lot of what I see in youth these days is that the fear of failure or not doing enough is it what actually stopping them from actually even trying or starting or taking that first step. So I think the first step is the hardest one, and then things get easier. Or not easier, you just learn to deal with it. So I think taking the first step is very important here. So, the original question, what is it that we need to do to fight the common enemy, which is mediocrity, not be forward-looking or per se, settling for lower quality ship out, right? तो उस हवाले से what are your 2 cents? I would say that it's very important that we focus on the quality of what we're delivering, right? Once you start working on something, right now जैसे AI के ऊपर हर किसी को काम करना है, it's because this new buzzword which is there, and a lot of people who refer to them as AI developers and AI engineers, they're just using APIs. API call कर दी, backend पे they don't actually know what's going on. And in a lot of times, I've seen that people are going to use those very cool models. जैसे एक simple problem है computer vision की, जो एक बिल्कुल simple सी CNN architecture से solve हो सकती है. They're going to go for a vision transformer because it's it's more cutting edge. It's more buzzy. So they're going to go for that rather than understanding कि actual यहाँ पे क्या need है. How can I optimize the solution? How can I bring it to the best of, how I can utilize my resources the best? So focusing on quality is very important if you want to deal with mediocrity. Yeah, sure. I also have to add one thing. To be very honest, I have this point.
it's all of us at fault. जो industry experts हैं वह who have been in the industry for a very long time, we are not doing enough. Industries से लोग डेवलप होते हैं, लोगों से इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती. सो अगर वनार्चन बैठी है, मैं बैठा हूँ, खातून बैठी हैं AI के रिलेटेड, आप बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जो लोग बैठे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो क्या कर रहे हैं? डू वी एक्चुअली गो आउट एंड मेक अ डिफरेंस? डू वी ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट? डू वी ट्राई टू टॉक? वी आर नॉट डूइंग इनफ एंड नथिंग इज इनफ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. दैट इज, आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग अ लॉट. मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना को खाली कर रहा था मैं. You know, Irfan, before I think I would love to hear your perspective. I want to add one thing. You know, I consciously put venture builder. आपने कहा ना कि we are consumers. Consumers are followers. We are going to wait for the big thing in validity. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा. उसके देखिए, मैं एम्पैथेटिक लाइन से देखता हूँ, हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं. मैं अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कहता हूँ, मेरा दोस्त भी इस चीज़ को काफ़ी जो है वो रिपीट करता था और ये मेरा भी गो टू बन चुका है कि अगर हम स्विमिंग रेस देख रहे हैं और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्विमर फ्रॉम पाकिस्तान, उसके तो पैर पे वैसे ही 20 kg की चेन और जो है वो गोला लगा हुआ है और उसको जो है ना उसको फिर वहाँ से उस स्विम को जो है वो करना है. एंड आई एम्पैथाइज विद दैट, आई अंडरस्टैंड दैट. और उसके बावजूद भी वी समहाउ स्टे अफ्लोट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. लेकिन वही बात है, इफ़ वी आर गोइंग टू बी कंज्यूमर्स एंड इफ़ वी आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द अप्रूवल, देन और लाइक द कंफर्मेशन, या मार्केट में कोई चीज़ ट्रेंड पे आ गई है तो आपने फिर वो प्रीमियम एंट्रेंस थी वो मिस कर दी, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी. तो उस हवाले से इरफान भाई. हाँ, मैं ना पंजाब रीजन में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और वर्क प्लेसेस, को वर्किंग्स पे यहाँ बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी दे रहा होता हूँ और स्पीचेस कर रहा होता हूँ. तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो मैं आवाम से पूछता हूँ, नॉर्मली ऑडियंस से, और उसका आंसर जो है ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आता है. मैं यहाँ पे भी पूछ लेता हूँ, पता नहीं अगर लोग सुन रहे हैं तो. कितने लोगों की यहाँ पे हॉबीज़ हैं? हाथ खड़ा करेंगे. क्या हॉबी है आपकी? राइटिंग. ओके, दैट्स एक्चुअली एन हॉबी. ग्रेट. जी, जर्नलिंग. ओके. लर्निंग कुड बी अ हॉबी है, मे बी. जी जी, सेमिनार्स अटेंड करना. अच्छा, दैट कम्स इन that comes in that consumption category, right? So hobbies are basically when you're creating something, when you're making something, right? जब आप बच्चे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो या फिर आप जाके लाइक सिलाई कर रहे हो, whatever, you are cooking, anything that you're actually doing, creating should be considered a hobby. And यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं लेक्चर देता हूँ जब तो 1000 बच्चे में से, लिटरली 1000 बच्चे में से सिर्फ 4 बच्चों के हाथ खड़े होते हैं. हालांकि they're all active, they're answering my questions, I'm walking around the audience, but they actually don't have hobbies. So if you want to become an entrepreneur in future, but your kids don't know what a hobby is and they are not interacting with their like environment, they can't then figure out what is the value that they can give to the society. सही है. Like even if you're a drawing, let's say as a kid, so you take that drawing and somebody will say, यार ये drawing बड़ी अच्छी है, मुझे दे दो. आप एक बंदे को दोगे, दूसरे को दोगे, तीसरा वाला ऐसे कहोगे, यार तेरा 10 रुपये तो दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू मी एज अ किड, राइट? तो 5वीं क्लास में स्कूल के बाहर हम 10-10 रियाल में बेच रहे होते थे सऊदीया में ड्राइंग्स, राइट? बट दैट्स व्हाट अ हॉबी डज. इट टीचेज यू हाउ टू गेट रियली गुड एट समथिंग बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट. अभी बहुत सारे लोग मेरे जितने साथ काम करते हैं, अभी टीम माशाल्लाह लाइक कोई 150 लोगों की टीम है. The first day, I tell them they have to start exploring hobbies because they need to get creative. Their minds need to become like creative, not just consuming ones, right? So ये core basic problem है. I think people that are growing up without hobbies, that don't know how to provide value through their work, it's very hard for them to then come in and think about के oh मैं ये value दे सकता हूँ. All they can think about is how do I make money. You know, I want to connect what you said with what you were saying कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ग्रेजुएट 4 साल में जो है वो ग्रेजुएट होने वाला है. विद द रैपिड रेट ऑफ इनोवेशन, जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं,
God knows what the world is going to be working on, right? Or what is going to be the next big thing. Or education system, just there the other day, so one of the portfolio companies we are working on, outcome-based education sort of a solution. तो उसमें हम जब बैठ के डिस्कशन कर रहे थे तो we have about 500,000 graduates, right? और आपको पता है 80% of them struggle to actually secure a job, or 80% of them are getting the feedback from the industry that they are not of any use. Okay? Because I think number one thing, that industry word right there, and it's missing because people think AI or blockchain, these are not industries. Finance is an industry. Hospitality is an industry. Medical is an industry. You're going to be helping these industries, but if you don't have any interest in any of these industries, then how are you going to help them? Right? That's why they're sitting around like. Absolutely. And then you see, one other thing is that we, again, I'm going to keep repeating this until cows come home. Capabilities are not equivalent to capacity. Meaning that a Stanford sort of programmer is learning how to code to build a startup. We are learning how to code for just for the sake of it. Okay? Or a German engineering student is really trying to solve the problem of the industry, because the very education system is designed that way. Here, it's all about sirf dhanda, which I'm not against, right? But there has to be that first fundamental block in the understanding, right? So education system से, even if we don't have to go too far, हम IT exports की बात करते हैं, right? We are sitting on what, 3.9? We are on 38 billion? Pakistani billion? $. Okay. So IT exports, अभी recently we said around 3.8, 3.9 पे हमने जो है वो close किया billion पे ना. And if you were to do the direct comparison to the neighboring country, India per se, अगर हम ratio भी निकाल लेते हैं for the size, they are on 204 billion, right? तो अगर वही ratio से मैं देखूं तो we should be somewhere between 40 to 50 billion dollars, but we are not, and we are aiming by 2030 to be at $15 billion, right? Now the problem that I see often I talk about is it's directly linked to the value chain or a supply chain per se, right? So education system, then it gets connected to the industry, and then it gets connected to 0 to 1, right? तो वहाँ पे graduation से पहले ही Google, Facebooks and Intels are there that, hey, I want your graduate to come and work for us. So एक है कि local industries पे तो उन्होंने काम किया ही किया, but they have been able to create a very lucrative sort of an ecosystem for these big organizations to go there, because वहीं से जो है वो आपका talent को playing ground मिलता है, right? कि कैसे जो है वो excellence के पीछे जाना है, what is a culture and so on and so forth. So yeah, what is your take on this particular lens? Before, we take a question, yeah. मैं फहमीना, इरफान ने बहुत अच्छी बात करी, जो मैं अभी जिस सिलसिले में तुम बात कर रहे थे कि बच्चों ये परेशान होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए. हॉबी इज़ द राइट थिंग. हॉबीज़ आपको बताती हैं कि अल्लाह ने आपको क्या क्रिएटिविटीज़ दी हुई हैं. जब तक हम उनको एक्सप्लोर नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करने में अच्छा लग रहा है. और एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालते हैं, मगर वो काम जो आप अभी जिसमें स्टक हो जाते हैं बड़े होकर, वो काम आपको वो पोटेंशियल दे रहा है, वो आपकी अंदर की एम्प्टीनेस को फिल कर रहा है. बहुत सारे लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन तो बन जाते हैं, मगर देन आखिर में वो क्या फील करते हैं? एम्प्टीनेस. फिर उसके लिए वो दूसरे काम देखते हैं, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, किसी की मदद करके मुझे खुशी मिले. तो क्यों ना हम अपनी जनरेशन को अभी से बताएं कि वो इनिशियली वे में वो ये एक्सप्लोर करें कि क्या चीज़ कर उन्हें अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में उनको थकन महसूस नहीं हो रही. तो जब तक वो खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक वो उस चीज़ को नहीं पा सकते. पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिजनेस खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर काम यह है कि अंदर की फुलफुलनेस आपको कैसे मिल रही है. तुमने भी इसी तरह अपनी जर्नी शुरू करी और बहुत सारे लोग अभी आके हम ये एक्सप्लोर करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे आने वाली जेन ज़ी है, अल्फ़ा है, वो हमारे तजुर्बों से फ़ायदा उठाए, अभी से उस चीज़ पर काम करें. ये थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाह रही थी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आइडिया इरफान.
गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। मैं बताऊँ मसला पता है क्या? मसला ये है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे यहाँ माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा बड़ा होके बहुत सारे पैसे कमाएगा और हमें घर दिलाएगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम। हम हर काम करते ही पैसे कमाने के लिए हैं। फॉर अस वी आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी। If someone really wants to do something big, we need to teach our kids to solve others' problem. Money should be the byproduct, not the primary motive. The moment we start turning this thought around and we realize that okay, I will solve a problem that exists in the world, which is a common problem, and I'll solve it in a non-complex way, we will win. That is the problem. अच्छा, ये ना हॉबी से पहले भी मेरा जो है ना वो एक पॉइंट होता है कि अभी थोड़ी देर पहले भाई से मेरी बात हो रही थी. हाउ मेनी ऑफ यू नो द नंबर ऑफ मिनट्स दैट वी हैव इन अ डे? 1440, right? So the ratio is going to be very sort of like, you know, not so very equal. अच्छा, if I were to consider that as a bank, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस आगे पीछे हो रहा है, राइट? तो बैंक में तो कम से कम है कि पैसा जाता है, आता है, ऊपर नीचे हो जाता है, राइट? ये ऐसा कैपिटल है 1440 मिनट जो कि दोबारा रिफिल नहीं हो सकता. जितने मिनट्स हमने अभी कर दिए ना, जितनी तिकड़म लड़ा ले कोई, इट्स नॉट गोना कम बैक. I find once we start understanding what really matters, how we need to sort of like take the gift of life that we have. डर कहाँ से आता है, स्कार्सिटी कहाँ से आती है? आपने कहा ना हमारे बच्चे तो जो है वो बच्चा पैदा होता है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना भाई, रिटायरमेंट प्लान है ना. लड़का है यू नो, और इवन अब तो लड़कियाँ भी जो है वो मैंने देखा है कि पेरेंट्स डू लुक एट देम एज वेल, राइट? तो ये तो एक सोसाइटल ऐसा चैलेंज है जो कि स्टार्ट ही कर रहा है कि क्यों करना है. लेकिन वो कहाँ से आता है? बिकॉज वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि नॉइज़ और सिग्नल में क्या फ़र्क है. ऑल दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, अभी गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो आपने कर लिया, कारोबार बना लिया, सब कुछ कर लिया, बेहतरीन कर लिया. If society is not safe, is it really going to give you that security that you're looking for? या अगर मैं आज किसी बच्चे ऑन द स्ट्रीट पे अपने बच्चे को ना देखूं, या किसी दूसरी परेशान अगर कोई रोड पे माँ है या कोई औरत है, उसको मैं अपनी बहन या अपनी माँ या अपनी जो है वो फैमिली मेम्बर्स ना देखूं, तो क्या मैं ये सारी चीज़ों को जो ऑन टॉप हम बात कर रहे हैं कर पाऊँगा? ये जो सवाल आता है, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मैं फिर से कैपेसिटी पे लेकर आऊँगा कि बीन एबल टू एम्पथाइज विथ योर सेल्फ एंड देन बीन एबल टू एम्पथाइज विद अदर्स, एंड देन द सेकेंड पार्ट आफ्टर दैट कम्स कि क्या हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, क्या हम सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग पे सोच सकते हैं, क्या हम इन्वर्स थिंकिंग कर सकते हैं, क्या हम क्रिटिकल इंक्वायरी में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं. आई डोंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग यू से, राइट? नीदर डू यू हैव टू एग्री विद एवरीथिंग दैट आई हैव, बट कैन आई पॉज टू सी एंड अप्रिशिएट द पर्सपेक्टिव दैट यू आर शेयरिंग, राइट? तो जब ये सारी चीज़ों की हम डे डॉट से घरों में बात करना शुरू करेंगे, तो आई बिलीव, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि एवरीथिंग एल्स विल कम सेकेंडरी. ये मुझे समझ आता है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई कम्प्लीटली अग्री विद यू हैर. और अगर हम देखें जो हमने सारी बातें अब तक की हैं वो सारी समअप ही होती हैं. जो इरफान भाई ने की, इन्होंने की, आपने की, ये सारी समअप ही होती हैं. वी हैव टू चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, द वे वी परसीव थिंग्स एंड द वे वी रिएक्ट टू थिंग्स. अगर हम एक प्रोसेस माइंड बना लेना अपना, चीज़ें ठीक हो सकती हैं. ये नहीं कि मतलब अगर बच्चा है तो उसने पास करना है, उसने स्कूल के बाद उसने नौकरी पर लगना है. अगर उसे कुछ और करना है, करने दो यार. स्किल सेट सीखना है, सीखने दो. हमारे यहाँ ना सेविंग कॉन्सेप्ट है ना कुछ. मतलब वी एज पेरेंट्स और एज एडल्ट्स नीड टू चेंज द वे वी थिंक, बिकॉज वी आर द फर्स्ट प्लेस आवर किड्स टेक इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन फ्रॉम. स्कूल तो बाद में जाएंगे भाई, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा हमें. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट अ फिंगर एट योर सेल्फ. यूँ करना आसान है, यूँ करके देखो ना यार. यूं कर रहे हैं तो एक है, तीन अपनी तरफ आ रही है, पांचों की तरफ करें, 10 की तरफ कर लें, 10 की तरफ कर लें. वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं. Yes. उस बच्चे की क्या गलती? What do you think, Anmol, about all of this?
आई थिंक दैट अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें तो जब लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट एम्पैथी राइट नाउ, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाते हैं, या हम जैसे कोई भी स्टार्टअप बनाना है तो वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स अ वेरी क्रिएटिव आइडिया, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप पर्सनली कनेक्ट कर सको विद द प्रॉब्लम, because to understand the pain points of it you need to be able to connect with the problem, to understand the problem uski depth tak. Like you were saying in your keynote ke rich problem solve karne ki you need to be rich first, but on the contrary to solve any problem you need to touch the ground level first, ठीक है. और वो चीज़ अभी हमारी सोसाइटी में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती है. जो जिन लोगों को प्रॉब्लम पता है उनके पास या तो रिसोर्सेज नहीं है या उनका माइंडसेट नहीं टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं शायद वो उसको उस लेवल की डेप्थ तक समझते नहीं है, विच इज़ अ गैप विच नीड टू ब्रिज. सो थिंग्स लाइक दीज, लाइक सच प्लेटफॉर्म्स आर सपोज टू एक्ट एज दोज ब्रिजेस. I think this is like Very, from very our intelligent perspective. thought process. And Irfan bhai, what is your take on what we just? Please. आई पर्सनली फील दैट जब मैं पिछले 5 साल पहले यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मुझे ये डिफरेंस भी नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है. नो बडी देयर टू टीच अस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन कंप्यूटर साइंस, IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. These are there 3 departments but look same. So after 5 years what I consume with the market, जो मैंने भी सीखा, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ का कोच करूं कि भाई तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए, तुम आगे जाके क्या करोगे. अगर हमें ये चीज़ इंडस्ट्री लीडर्स देना शुरू कर दें ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज जेनजीज आर नाउ ऑन सोशल मीडिया, नो वन इज़ कमिंग टू द सेमिनार्स लाइक वी डू. जैसे मैं आज आया हूँ सीखने के पर्सपेक्टिव से, वो नहीं आते, वो मोस्टली ऑन सोशल मीडिया है. सो आई ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड और ट्राई टू टीच जेनजीज to do these things to boost your career, and then how you make money after that, because if we know the track so we will make money. Money is easy if you find a good track. So we are in the lack of this state कि we don't know the tracks here. इसका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे ये मसला हो रहा है जो आप कह रहे हैं ना. आप यूनिवर्सिटी से करके निकल गए, देन यू केम इनटू द इंडस्ट्री. बाहर आप रहे हुए हैं, मैं रहा हूँ, सबको जो रहे हुए उनको पता है 16 साल की एज से आप जॉब करना शुरू कर देते हैं. दैट्स द एज व्हेन इफ़ यू डोंट वर्क यू आर शेम्ड बेसिकली बाय योर फ्रेंड्स के ओ तुम काम नहीं करते, फारिग आदमी, राइट. तो जब 16 साल की एज से आप किसी ऑफिस जा रहे हैं जहाँ प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, तो यू आर गेटिंग मेंटोरशिप फ्रॉम व्हेन यू आर 16 ईयर ओल्ड फ्रॉम ग्रोन अप्स, विच इन आवर केस नॉर्मली यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ये है कि तकरीबन 22 से 24 साल की एज में जाके बंदा पहली जॉब कर रहा है एंड दे एक्सपोज टू अ रियल लाइफ मेंटोर unless they go to events, which is very rare, right? So I think this is a mentality that needs to change. It is changing with Gen Z. Like मेरे पास एक Gen Z काम करता है, he is in grade 12 and he makes $2,000 per month. ठीक है, that's huge, $2,000 per month, and he delivers the value as well. But that's a very rare gem, right? I think if everybody pushes कि यार 16 साल से अगर चाहे बर्तन धोने की भी जॉब करनी है ना तो करो जाके. जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं खुद से, पॉकेट मनी तो अपनी खुद निकालो. Because the number one thing they'll gain is mentorship from some senior guy, जो कि otherwise people like me, him don't have time every day to give to sessions and everything, right? But somebody you're working with does have that time. Beautiful. And I would like to add here, just like he said, कि ये वाला gap है. करियर काउंसलर्स के पास भी आप जाएंगे ना तो दे, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. लाइक पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग उस तरह डेवलप नहीं हुई, तो इवन इफ़ यू गो टू अ करियर काउंसलर यू माइट एंड अप कन्फ्यूज्ड योरसेल्फ. क्योंकि आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं जिस A लेवल स्कूल गई थी वी हैड काउंसलर्स हु अंडरस्टूड अस के क्या इंटरेस्ट हैं, क्या अलाइन हो रहा है. बट टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स दैट इज़ नॉट कॉमन. ये वही बात हो गई कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी जो है वो जिन्होंने कभी खुद से वेंचर बिल्डिंग नहीं किया. So based on that, like he said, that बहुत ज़रूरी है कि जो लोग, at least I am a Gen Z myself, so I understand this from this perspective too. तो मैं इसीलिए this is why I'm active in the community for this entire purpose. Like I come across a lot of students who are now in their final year,
like they're graduating, they'll be in the market in like 6 months, और वो अभी भी इसी चीज़ पे confused है कि हमें कौन सा track choose करना चाहिए. Like you've done your degree, you're about to enter the industry and you still don't know आपको कौन सा path लेना है. तो ये चीज़ again from an education point of view, it's a gap. So when I started, when I stepped into the industry, this is one of the reasons what I do is that I do mentorship. Like I'm not as experienced as the other people here, but in my capacity, I try to do my bit. So that's why I'm active in this community. I do tech sessions, I do training sessions, and I also do online mentorship through my LinkedIn account. आपकी लोग सुनेंगे भी ज़्यादा ना, आप यंग हैं, रिलेट करेंगे, हम तो बूढ़े हो चुके हैं. तो यू शुड डू मोर. हमारे हिस्से की भी. So again, गलत हम हैं. I come from a Delhi wala family, and when I turned 15, alhamdulillah, I'm from a very stable background. मेरे अब्बा ने मुझे उठाया, दुकान पे डाल दिया कज़न की, वहाँ झाड़ू भी लगवाई, सेल्समैनशिप भी कराई, बस में भेजा, ड्राइवर छोड़े बस स्टॉप तक और बस स्टॉप से जाओ बस के अंदर. ओ भाई कब्र में लेके जाओगे पैसा क्या? गुस्सा आता था उस वक्त अब्बा को देख के ना. आदिल चाहता है हाथ चूम लो उस बंदे के. Because he made me work hard to realize how hard and difficult it was to earn money. And today, we need to do the same with our kids. We need to make sure we make them realize, ये मेरा चांद, मेरा बच्चा 22 साल के हो गए हैं घर से. My dad closed my pocket money when I turned 16. गाड़ी विट्स थी, पॉकेट मनी 5,000 रुपये और पेट्रोल था 10,000 रुपये का. खुद कमाओ, ट्यूशन्स पढ़ाए, चीज़ें की, पैसे बने. That's one. Number 2, मसला ये है कि देखें फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने. So we all know the top 5 companies of Pakistan, right, जो IT के अंदर हैं. स्टूडेंट्स को पता होती हैं, आपको भी पता होंगे जब आप आए होंगे तो. तो why did the students not search out the industry leaders and drop them a message on LinkedIn, on WhatsApp? चलो WhatsApp नहीं है, यहाँ पे लोग आए, हम बैठे हैं, 5 मिनट पीछे पड़ जाओ हमारे. मतलब अगर हम आपको 5 जगह देखें, पीछे 5 जगह पड़ जाओ हमारे. आपसे मैं लास्ट टाइम मिला था, आपने जवाब नहीं दिया. मुझे जवाब दें, जवाब चाहिए, हक से मांगो. बोला आप कैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, आपको जवाब नहीं है मेरे लिए. हक तो मांगो, डरते क्यों? नॉट यू, जस्ट सेइंग. डरना छोड़ो यार. क्या मतलब मैं आपको क्या बोलूँगा? आई विल से आप व्हाट्सएप करके ब्लॉक कर दूंगा, लिंक्डइन करके ब्लॉक कर दूंगा. मुझे फेसबुक पे अप्रोच कर दो. फेसबुक पे ना हो, मैं रेस्टोरेंट को अब तो मैं पूछ के जाऊँगा. 3rd 4th टाइम आई विल आंसर. यार जान छोड़ाओ. वी शुड लर्न फ्रॉम द बेगर्स इन आवर कंट्री. पीछे पड़ जाते हैं. अब भाई माफ़ कर यार. राइट? दैट्स द अप्रोच वी नीड टू अडॉप्ट. इफ़ यू वांट टू विन, यू नीड टू बी अ विनर, व्हाटएवर इट टेक्स. Thank you, and I think we are going to now move the conversation very shortly into how to leverage AI and Web3. Foundation is set very nice. Often मैं यही कहता हूँ, पहले क्यों करना है समझ लो, और क्यों करना समझ लोगे तो उसके बाद जो है वो क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो वर्कआउट हो जाती हैं. अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी as I was listening to beautiful, intelligent thought processes. I'm privileged to be able to hear such a wonderful sort of narrative. Jensen Huang का एक ग्रेजुएशन पे रिसेंटली उससे किसी ने सवाल पूछा कि सक्सेस से रिलेटेड, तो उसका यही था रिस्पॉन्स कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम इंटेलेक्ट, इट कम्स फ्रॉम कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर इज बिल्ड through pain and suffering. So he says, as you graduate today, I wish ample doses of pain and suffering to those Harvard students, right? So I think what you talked about your father putting you through, or sometimes, you know what, this particular example, coming from a comfortable background and then still parents consciously putting you through suffering is one thing. बट पाकिस्तान में पैदा हुए हो भाई, वो तो कॉन्स्टेंटली तुम्हारी कैरेक्टर बिल्डिंग अल्लाह ने तुम पे इतना ख़ास करम कर ही दिया है कि कोई भी बंदा हो वो कहीं ना कहीं उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है. राइट? अब उस कैरेक्टर बिल्डिंग को चैनलाइज कैसे करना है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, फॉर दैट यू नीड एन इकोसिस्टम. पर्सनल स्मार्ट्स, इफ यू हैव नॉट रेड दिस बुक, आई वुड हाईली रिकमेंड रीड आउटलायर्स बाय माल्कम ग्लैडवेल. ही टॉक्स अबाउट that personal excellence, yes, it plays a part, the drive and everything else plays a part, but that will get you to a certain extent. A lot of people undermine the importance of where they live. मैं इतना शौक में हूँ, मैं ever since I returned,
मैं कॉन्शियसली बैरियर टाउन में रहता हूँ, डजेंट मैटर व्हाट्स हैपनिंग राइट, बट द एयर द ब्रेक दैट आई गेट कराची के chaos से, I would have gone nuts, right? Literally, if I didn't have that rejuvenation and then being able to stay where you are, right? Energy matters. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं. And I would love to hear another perspective from you guys, and then we'll talk about the technical terms. उस दिन भी मैं एक session कर रहा था, तो I like to talk about these things. Why? Because we are all champions. यहाँ पे हर बंदे को ना what and how बड़ा ज़बरदस्त आता है. कोई कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं. भाई काम की बात यह है कि पहले समझ लो कि कर क्यों रहे हैं, राइट? Roy Casagandra, if you haven't followed this guy, you should listen to him. He talks about history a lot. He talks about rise and falls of empires, political sort of sciences, geopolitical, वो सारी चीज़ों पे बड़ा openly बात करता है. And he tries to call spade a spade. He tries to not take sides generally. You would always have biases, right? So I like the guy. I don't agree with everything he has to say, but again, he uses this analogy, जो मैंने फिर later on connect की, कि नियोफीलिया नियोफोबिया है एक जो इंसान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक तजाद है. हमें नई चीज़ें भी चाहिए, हमें अपनी अपनी सी भी चाहिए, इसी में हम पूरे नहीं होते. जब इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये होता है तो सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड विथ योर प्रिजर्विंग एंड योर डिसरप्टिव फोर्सेस. यानी कि नया नया जिनको चाहिए होता है वो डिसरप्टिव फोर्सेस होती हैं, और जिनको प्रिजर्व करना होता है वो प्रिजर्विंग फोर्सेस होती हैं, राइट? तो जब आपकी सोसाइटी इन दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है तो आपको मेंटेन करना होता है एक पेंडुलम स्विंग. यानी कि बच्चे को जब झूला दे रहे होते हैं तो वो स्विंग ऐसा हो कि बच्चा सो जाए, लेकिन अगर आपने ज़ोर ज़ोर से खींचा और इधर उधर हुआ ना तो सोसाइटी पूरी जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. पाकिस्तान में मेरा जो 2 सेंट्स हैं वो ये है कि वी आर मोर ऑफ प्रिजर्वर्स. हमारे पास प्रिजर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मसल है, डिस्ट्रप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मसल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेवलप नहीं हुआ. डू यू थिंक आई एम फ्लोटिंग अबाउट इन अ राइट डायरेक्शन? बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो पेंडुलम स्विंग क्रिएट करने से पहले एक डिस्ट्रप्शन की तरफ जो है वो एक स्विंग, एक पुश देना पड़ेगा, और वो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप समझ आती है. तो थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ सिविक ड्यूटी, राइट, फॉर अस टू रियली अंडरस्टैंड it's not about creating more startups, it's not about creating more businesses, rather making people entrepreneurial, जहाँ पे वो कहें कि भाई I am going to take the responsibility of this much, I'm going to take the responsibility of this problem which speaks to me and I'm going to solve that problem, right? So उस problem को man in the machine वाली जो दुनिया आने वाली है या आ गई है, हम कितना पीछे हैं? पहला सवाल याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल एक साथ फेंक रहा हूँ मैं. हम कितना पीछे हैं? दूसरा, आई डोंट थिंक वी नीड टू प्ले कैच अप एनी मोर. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो हमें सिस्टम दिया था उस सिस्टम में हमने जनरेशन्स जो है वो ट्रेन कर दी, बट अब हमें माइक्रो क्रेडेंशियल्स से चीज़ों को सही तरीके से सीख के 12 ग्रेडर जो है वो $2000, और इवन सिलिकॉन वैली में तो ये डिबेट चल रही है कि टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू मेक मनी रेलेवेंट. तो अब क्या करेंगे? मनी की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट? तो व्हाट विल ह्यूमन बीइंग्स बी डूइंग? और ये सारी चीज़ें जो है वो इन अ वेरी रीसेंट फ्यूचर बहुत जो है वो आपके नियर फ्यूचर में नज़र आ रही हैं. तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन गेमिंग, Web3, AI, व्हाट्स हैपनिंग? प्रिजर्विंग फोर्सेस, डिसरप्टिव फोर्सेस, पाकिस्तान का स्टांस एंड फ्यूचर मैन इन द मशीन, क्या नज़र आ रहा है? देखें भाई, मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स बातें समझ में नहीं आती. मैं बड़ा सादा बंदा हूँ, और सादी बात है ये डिस्ट्रप्टिव और यार सिंपल बोलते हैं. फाइंड अ प्रॉब्लम विच इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इन अ नॉन कॉम्प्लेक्स वे इज़ द सोल्यूशन. अब वो प्रिजर्विंग, यू ऑलवेज डिस्टर्ब बिफोर यू प्रिजर्व. यू कैन नेवर प्रिजर्व व्हाट यू डोंट हैव, एंड व्हेन यू, इफ यू डोंट हैव इट यू कैन नॉट हैव इट अनटिल यू डिस्टर्ब. हेंस आपका पॉइंट सही है. आई कैन कनेक्ट दैट. नंबर 2, once you build something, once you find something, once you find a common problem and find a common a very non-complex solution, build that and scale it up. जर्नी पे जाएं, कोशिश करें, हो जाएगा.
इतना सोचना करना नहीं होएगा वरना. I call myself, as an entrepreneur कह लें या as a बेकार इंसान कह लें, मेरा काम है to create and break. I start 4 products in a fortnight and I close 5. I'm not afraid to lose. क्या ही कर लोगे. Number 3, आपने एक बड़ी important बात की थी. I'm losing that point. I'll get back there. If anyone has to make a point, please go ahead. छोटा सा उस पर पॉइंट करूँगा जब फीचर की बातें कर रहे थे कि फीचर में कुछ काम नहीं होगा तो बट प्रॉब्लम विल स्टिल बी देयर. अगर किसी के पास कोई काम नहीं है तो द मेन प्रॉब्लम टू सॉल्व इज बोर्डम एंड देयर इज अ एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट डज दैट. आई मेड सो मेनी गेम्स, आई स्टिल हैव गेम्स दैट आई मेक टू फाइट दैट प्रॉब्लम फॉर पीपल, वेदर इट्स शॉर्ट टर्म बोर्डम बिटवीन योर वर्क ब्रेक्स कि आप फटाफट खोलो खेलो बंद कर दो, या लॉन्ग टर्म है कि PS खोलो और देर तक खेलो गेम, राइट? So I think there's always going to be a problem, a human problem to solve, and there's going to be creative minds that will solve it. And if they're solving something, then they'll get the token back, whatever that is, currency or that's being used. Maybe it's water. Maybe we run out of water and we're trading water for entertainment. Who knows, right? But there's always going to be a trade-off between value and some currency that you get. And talking about machines and future, ठीक है, फ्यूचर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, लाइक आई हैव सीन इन द 2 years दैट आई हैव ग्रेजुएटेड, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग AI, इट वाज बैक इन 2020 व्हेन आई गॉट एनरोल्ड. उस वक्त लोगों को नहीं पता था AI क्या है. अगर मैं बताऊँ मैं AI डिग्री कर रही हूँ तो पीपल विल हैव क्वेश्चंस. एंड 2022 ChatGPT गेट्स फेमस, 2024 आई ग्रेजुएट एंड एवरीबडी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट AI. मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज वो मिला था कि आई स्टार्टेड ऑफ अर्लियर देन इट वाज इट बिकेम द कूल थिंग. Ab, if you look at this right now, the entire last year was generative AI, and I see this year as being agentic AI. These trends will come and go, but जो fundamentals हैं ना वो वही रहेंगे. Like even now I'm saying this, people might agree, disagree. अगर आपके fundamentals हैं जो machine learning, deep learning वाले, if you're talking about the AI perspective, you are going to stay. But if you just follow one trend, you do a course, you build your skill set to one thing, it's going to change in the next 2 years. एंड फ्यूचर में जहाँ मशीन एंड इतना मशीन ओरिएंटेड, इतना एल्गोरिथमिक सब कुछ हो जाएगा, उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ह्यूमन इमोशन एंड एम्पैथी. सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग वेयर ह्यूमन्स विल बी नीडेड द मोस्ट, एंड डिस्पाइट एवरीथिंग द ह्यूमन टच and the emotions is something which will always differentiate from us from the machine. अच्छा, आपने कब enroll किया था? 2020 में. So look at the difference, and this is crazy. In 2020 most people didn't know in Pakistan about AI, right? I am a graduate from Canada of AI की degree है मेरे पास from 2005. I graduated in 2005. That's how big of a gap there is in the educational mindset here कि 15 साल पहले वो लोग ग्रेजुएट कर रहे थे AI को, और भी 5 साल पहले I am the first batch in Karachi for AI. So नहीं आपको कुछ नहीं कह रहा. from वो जो आप कह रहे थे ना कि एक सिस्टम और इकोसिस्टम की ज़रूरत है, वो आई थिंक एक अपग्रेड की ज़रूरत है हमें थोड़ी ज़्यादा. मैं एक और चीज़, हम AI की बात कर रहे हैं, हम जो है ना कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं. फ्यूचर में हमें क्वांटा का, क्यूबिट्स का बड़ा पावर समझ आ गया. जैसे स्टीम ह्यूमन बींग्स को समझ आ गई थी तो हमने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, तो अभी हम उस पिनिकल पे आगे खड़े हुए हैं ना. मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना लेयर्स समझनी होंगी, और उन लेयर्स को समझ के भी अगर हम इंडस्ट्रीज़ को ड्राइव करते हैं ना तो दैट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, यू गोना नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ एंड एप्लीकेशन को देखते हुए एनर्जी के इर्द गिर्द उसी चीज़ को जो बेसिकली इमर्ज मार्केट जहाँ पे 2005 से इंजीनियर्स निकाल रहे हैं उसको डिप्लॉय करके आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्यों नहीं प्रमोट करते? हम क्यों हर चीज़ को उबरिफाई किए जा रहे हैं, राइट? उसके बाद आती है चिप डिज़ाइन, राइट? हु इज़ गोना डिज़ाइन ऑल ऑफ दोज थिंग्स? आपके पास फैबलेस मॉडल्स हैं, you are literally right next to China and like the global south के point of view से nobody actually is talking about these beautiful gold nuggets. Haven't worked with Intel, gotten that exposure. I understand that not everybody might have it, but there are a lot of incredible people that I see coming from abroad. What are the roadblocks? I don't know. Then you have
you know, your data centers, you have your, then LLMs come and then comes the agentic AI and everything else, right? तो जब हमें ये लेयरिंग ही नहीं समझ आएगी, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे ही बात नहीं करेंगे, तो हम कंज्यूमर्स ही रहेंगे. वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी लीडर्स, बट वंस अगेन अगर कैपेसिटी नहीं हुई टू डू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, अगर कैपेसिटी नहीं हुई आपके पास यू नो क्रिटिकल थिंकिंग की, अगर आपके पास फाउंडर, वी कॉल दिस बाय द वे फाउंडर मोड, जस्ट सो यू नो. सो इन फीनिक्स वेंचर हाउस व्हाट वी डू इज वी जेन्युइनली स्टार्ट विद द फाउंडर्स, राइट? बिकॉज वी नो दैट आज कोई आइडिया है, कल कोई दूसरा है, कल परसों कोई तीसरा है. We do two things. We say first, manager mode is not going to work. You can't be an entrepreneur or a founder in a manager mode. So founder mode is something. And then we connect it with our framework of SMBTV, right? So soul, mind, body, trust and value. Maslow's hierarchy of human needs is upside down, but this is exactly how it is, right? You start with your why, then make sure that you have cognitive tendencies. Your body actually supports that passion that you have. And that's when you build the trust, because without the trust deficit there is an issue. And then create value for yourself. आपने बहुत प्यारा वही thought process था कि in future हमने money पहले evolve किया था, तो money था, money से हमने value कर दिया. Why? Because there is always going to be value exchange, but currently the currency and the money which may become very The relevant. only value we see is in this real estate that we're seeing all around. Is like, And- किसी से भी बोले इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बोलेंगे real estate. And how can we actually bring it's a non-productive, to an extent non-productive asset class, right? And To me, it translates into ke I don't want to do anything. Gen Z and the new generation actually isn't opting for that. Yeah, they're much more active. They don't Much more want to. active. So yes. So coming to the end of our conversation, I would love for you guys to add your 2 cents, summarize how can businesses, founders and people can leverage AI and Web3. What is your future side? आपका क्या vision है? आपकी क्या prediction है? So yeah, each one of you can give that to us. That'd be great. Okay. So I will sum up like this. Will AI replace humans? No. Never. But a human using AI will definitely replace you. इत्तेफाक हुआ लास्ट मंथ बात करेंगे टीम से, तो कहने लगे हम AI बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा दिमाग बंद ना हो. मैं खुदा के बंदे AI इस्तेमाल कर तो दिमाग खुल जाए. So that is one thing. Number 2, Web3. Web3 is not too complex. हमने बनाया हुआ है सिर्फ आसानी पैदा करें, पढ़ना स्टार्ट करें. It's as good as .com bubble back that was Web 1, फिर Facebook Orchid आया, that is Web 2, and decentralized, autonomous, data being yours is Web 3. कोई मुश्किल बात नहीं है. It's just a transition, कोई नई टेक नहीं है, टेक का एक नया फेज़ है. अडॉप्ट करें, AI को इस्तेमाल करते हुए अडॉप्ट करें. मैं तो कहता हूँ पढ़ें भी AI से, मैं तो कहता हूँ. So this is one opportunity which can actually turn around for Pakistan. ये वो वक्त आ गया है, keep saying this, कि पाकिस्तान में बैठे बच्चे के पास वही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो US में बैठे बच्चे के पास अवेलेबल है. So if not now, never is my point. Okay. So I would just, to conclude things, I would just say that, it's very important to start researching. And जो भी interest है, like we were talking about hobbies and everything, it's very important कि interest होना ज़रूरी है. So for AI, it is that the beauty of AI is that it can connect to any and every industry. So whatever is your interest, connected with that, find intersections, and that is the beauty of technology, that it can integrate with different domains in a very beautiful way. So I think I'll keep it short. Yeah, I love the very specific answers, right, from the young generation, because actual में ये true है. There's a skill and there's an interest. You just need to merge them, and then you're going to be happy. Plus, I know there's few people here, और future में भी इस तरह के बहुत सारे sessions हो रहे होते हैं. I don't know, कराची में मुझे फिर भी कम नज़र आ रहे हैं, लाहौर वगैरह में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं. वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और इसका थोड़ा ज़्यादा है फेज. बट इन जनरल आई थिंक हमें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, व्हाटएवर इस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि learning is a byproduct of these events, but I think more so networking is the most important part that should be for everyone. Like I've hired lots of people just from these sessions,
where I saw someone bright and I talked to them and I figured out, oh, they got these skills, awesome, come try them out. So networking is a huge thing, I think, and then putting these events on social media and stuff like that, I think that's the right way to use social media. Again, rather than consuming, become that creator that promotes these kind of events, promotes yourself. And then जब आप लोग देखेंगे आपको तो कोई आपसे आके बात करेगा और most likely there's gonna be some चीज़ें जो आप आपस में कर सकेंगे. लेकिन आसिफ साहब हैं, उनसे आज मैं मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई. And that's part of the networking beauty, right? That you meet new people that you've never met before and it feels like you've known them forever, right? So I think I would advise everyone to do the same. Just walk around, stumble into people and ask them random questions. See what strikes. Very important. I forgot that as well. Networking. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाहर जाएं. वहाँ पे तो हफ्ते के कोई 500 इवेंट्स हो रहे होते हैं. And just get a pass, just apply. Luma डालें अपने फ़ोन्स में. And go meet people, go talk around, understand what they're doing, why they're doing, be a curious mindset, learn, talk, and your network will be your net worth in the future, I'm telling you. Thank you so much, guys. You have been phenomenal. And yeah, speak to at least one new person every single day. That's what my mentor told me, and I have actually taken it. And it's been 15 plus years since I was given this advice. At least one new person every day, you will solve a lot of problems, you'll make great connections, and you'll keep moving. Thank you, guys. And thanks, Maniba, behind the stage.